Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are healthy, fit and fine and your studies are also going well. Children, you know that we have already started unit 17 of your Superb English Grammar book. The children who are regularly watching the videos, they must be knowing that we have started this unit and I have explained you what this unit is all about. This unit is about conjunctions and I have explained you what conjunctions are. In my previous video, I have explained you conjunctions किसे कहते हैं, what are conjunctions. So if you have not seen, please go through that video. In today's video, I will be starting the exercises based on this conjunction. मैं रिवाइज कराऊंगी, थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगी, बट आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल. यू हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियो फॉर दैट. चिल्ड्रन, कंजंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स. इसको हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं बिकॉज दे जॉइन टू और मोर वर्ड्स or a group of words or short sentences. The conjunctions join two or more words or group of words or short sentences. Children, we use and when we have to join similar ideas or we have to add some information. अगर हमें कुछ similar ideas बताना है तब हम and use करते हैं, या हमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है, देन वी यूज एंड. वी यूज और व्हेन वी हैव चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस. वी यूज और द कंजंक्शन और व्हेन वी हैव टू चूज फ्रॉम टू और मोर ऑप्शंस. एंड वी यूज बट when there is some differences, when we have to show differences or some opposite ideas. Okay, all these I have explained in detail in the previous video, so you go through that video. I have given example of and, but and or, when we use and, when we use but, when we use or. I have explained that with example. Let's start the exercise of your book. Now we will start the exercise of your book because explanation part is already over. Children, some sentences are given in your book. आपकी book में कुछ sentences हैं and those sentences are connected using conjunctions. जैसा मैंने आपको बताया कि conjunctions are used to connect either two or more words, short sentences और group of words. अगर दो सेंटेंस दिए हैं तो हम कंजंक्शन की हेल्प से उसे एक सेंटेंस बना सकते हैं. बाय यूजिंग कंजंक्शन वी कैन जॉइन टू सेंटेंसेस एंड वी कैन मेक इट सिंगल सेंटेंस. वी कैन मेक इट वन सेंटेंस. ठीक है, तो चलिए इसका हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बुक. Read these sentences. First one is Ram has a pencil. Ram has a pencil. Second sentence is Ram has an eraser. Ram has a pencil. Ram has an eraser. These are two sentences. ये दो sentences हैं. अब इसको हम conjunction की help से join करेंगे. कैसे join करेंगे? Ram has a pencil and an eraser. Got it? Ram has a pencil. Sorry, pencil का spelling गलत कर दिया मैंने. Ram has a pencil and an eraser. Full stop. Now these two sentences are combined together with the help of and. राम के पास पेंसिल है और राम के पास ही इरेजर है.
सेम पर्सन के पास पेंसिल और इरेजर है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू डिफरेंट सेंटेंसेस, टू सेपरेट सेंटेंसेस, बिकॉज राम इज द सेम पर्सन, he has pencil, he has an eraser. So instead of writing two different sentences or two separate sentences, we will join these two sentences by using and. ये हमारा कंजंक्शन हो गया. राम हैज अ पेंसिल एंड एन इरेजर. राम के पास एक पेंसिल और एक इरेजर है. हो गया हमारा एक सेंटेंस. राम के पास पेंसिल है, राम के पास इरेजर है. तो 2 बार बोलने से अच्छा राम के पास एक पेंसिल और इरेजर है. A pencil and an eraser. Got it? Let's see the second example. Number 2. Paras is happy. His sister is sad. Now children, as you can see, 2 sentences are here. Paras is happy, his sister is sad. Here you can see 2 opposite ideas are there, happy and sad. Happy है और sad है. Children, I have explained you when we add different ideas, when we add opposite ideas, we use conjunction but. हम बट यूज करते हैं जब हमें डिफरेंट ऑपोजिट आइडियाज को कनेक्ट करना होता है या कुछ डिफरेंसेस को कनेक्ट करना होता है. तो वी कैन मेक दीज 2 सेंटेंसेस इनटू सिंगल सेंटेंस. ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके हम सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं देखिए. Let me join it for you. Today I am using different color chalks to explain you the difference. Okay. So Paras is happy. Paras is happy, but his sister is sad. एक सेंटेंस बन गया. पारस इज हैप्पी बट हिज सिस्टर इज सैड. पारस तो खुश है पर उसकी बहन उदास है. खुश का ऑपोजिट क्या हुआ? उदास होना. तो सैड है. पारस इज हैप्पी बट हिज सिस्टर इज सैड. वी यूज बट व्हेन वी एड ऑपोजिट आइडियाज और व्हेन वी हैव टू शो सम डिफरेंसेस. सो दिस वी हैव मेड 1 सेंटेंस. ये 2 सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस बना दिया. आपको पता चला कंजंक्शन का यूज. नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. Number 3. Do you want milk? Question mark. Here again we have 2 sentences. Do you want milk? Do you want juice? Now here we have choice. अब हमको चुनना है कि हमें दूध चाहिए कि जूस चाहिए. तो जब भी हमें चॉइस करना होता है, when we have to choice, when we have to show choice between 2 or more options, when we have to show choice between 2 or more options, we use conjunction or. हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? और. तो हम क्या करेंगे? ये 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाएंगे. We will join these 2 sentences and we will make 1 sentence by using the conjunction or. हम conjunction और यूज करेंगे और ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके हम एक सिंगल सेंटेंस बनाएंगे. कैसे?
Do you want milk or juice? Do you want milk or juice? अब चॉइस हो गया ना, यहाँ चॉइस किसमें है? मिल्क और जूस में चॉइस है. डू यू वांट मिल्क और जूस. ठीक है, यहाँ पे चॉइस किसमें है? मिल्क और जूस में. सो डू यू वांट मिल्क और जूस. ये दो सेंटेंस हमने सिंगल सेंटेंस बनाया एंड वी यूज्ड कंजंक्शन और फॉर दिस. इस सेंटेंस को सिंगल बनाने के लिए हमने कौन सा कंजंक्शन यूज किया? वी यूज्ड और. हमने कंजंक्शन यूज किया और. समझ में आया आपको? चलिए हम और देख लेते हैं आपके लिए. I ate an apple. I ate a banana. I ate an apple. I ate an banana. I ate a banana. अब हमारे पास फिर दो सेंटेंस है. मैंने एप्पल खाया, मैंने बनाना खाया, दोनों मैंने ही खाया. तो इसके लिए दो सेंटेंस की जरूरत हमें है. डू वी नीड टू सेंटेंस फॉर दिस? नो. वी कैन जॉइन दीज टू सेंटेंसेस एंड वी कैन मेक इट one sentence. But how we are going to join these two sentences? We will join these two sentences by using conjunction and. कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? एंड. क्योंकि सिमिलर आइडिया है ना, दोनों ही हमें खाने की चीज है. तो यहाँ पे सिमिलर आइडिया है तो हम यूज करेंगे एंड. टू वर्ड्स को हम ज्वाइन करेंगे एंड व्हाट वी विल से? वी विल से आई एट एन एप्पल एंड I ate an apple and a banana. I ate an apple and a banana. मैंने एक एप्पल खाया और एक बनाना खाया. And apple and a banana. तो ये and क्या है? कंजंक्शन है. हमने ये दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाया by using the conjunction and. हमने कंजंक्शन यूज किया एंड और दोनों सेंटेंस हमारे ज्वाइन हो गए. ठीक है. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. Number 5. The apple was sweet. The apple was sweet. The banana was अनराइप. अनराइप मतलब कच्चा, जो पका नहीं होता है उसको हम कहते हैं अनराइप. अगर पक गया है तो हम कहेंगे राइप और अगर कच्चा है तो हम कहेंगे अनराइप. ठीक है. द एप्पल वॉज स्वीट, द बनाना वॉज अनराइप. तो चलिए अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करेंगे और साथ में हम यूज करेंगे कंजंक्शन. बिना कंजंक्शन के नहीं ज्वाइन होगा. सो हम लिखेंगे दी एप्पल वॉज स्वीट. अब यहां देखिए, ये ऑपोजिट आइडियाज हैं या डिफरेंसेस है ये. तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? व्हेन वी हैव टू शो डिफरेंस वी यूज बट.
हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? बट. सो द एप्पल वॉज स्वीट बट the banana was unripe. Got it? The apple was sweet, but the banana was unripe. एप्पल तो मीठा था, पर जो बनाना था वो कच्चा था. ठीक? हमने कंजंक्शन यूज किया बट, और हमने दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया कि द एप्पल वॉज स्वीट बट द बनाना वॉज अनराइप. हो गया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं. चलिए, are those bananas cheap or costly? Now children, यहाँ ऑलरेडी मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिया है जिसमें कंजंक्शन है, पहले से ही कंजंक्शन यूज्ड है. आप देख रहे होंगे, आर दोज बनानास चीप और कॉस्टली. यहाँ पर पहले से ही हमने कंजंक्शन और यूज किया है. चॉइस है, चीप या कॉस्टली वर्ड में चॉइस है. एक्चुअली में ये दो सेंटेंस कौन से थे? आर दोज बनानास चीप और दोज बनानास कॉस्टली. हमारे सेंटेंस क्या थे? सेंटेंस थे हमारे आर दोज cheap आर दोज बनानास कॉस्टली. ये हमारे दो सेंटेंस थे जिनको हमने ज्वाइन करके एक सेंटेंस कर दिया बाय यूजिंग द कंजंक्शन और. आर दोज बनानास चीप और कॉस्टली. तो आपका दो सेंटेंस क्या हो गया? सिंगल सेंटेंस में चेंज हो गए. ओके, नाउ आई होप आपको कंजंक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है, एंड, बट और का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, है ना? काफी सारा क्लियर हो गया है. अब कुछ एक्सरसाइज देखते हैं फ्रॉम योर बुक ओनली. ओपन योर बुक, पेज नंबर 71. ओपन योर बुक, पेज नंबर 71. इसमें क्या है? अंडरलाइन द कंजंक्शंस. सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस इज ऑलरेडी रिटन. You have to simply underline the conjunction. You have to identify the conjunction and you have to underline it. Okay? Find out the conjunction in the sentence and underline it. Question लिख लेते हैं पहले. This is the question. I like noodles and children, first sentence is I like noodles and pasta. I like noodles and pasta. इस सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा है? Which is the conjunction in this sentence? We can easily say that this is the conjunction. ये कंजंक्शन है ना?
आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा. दिस इज कंजंक्शन. आई लाइक नूडल्स एंड पास्ता. कौन से दो सेंटेंसेस हैं जिसको ज्वाइन करके ये एक सेंटेंस बना होगा? कैन यू थिंक? आई लाइक नूडल्स, आई लाइक पास्ता. आई लाइक नूडल्स, आई लाइक पास्ता. ये दो सेंटेंस को कंबाइन करके हमने बनाया है आई लाइक नूडल्स एंड पास्ता. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस. He is tall, but his brother is short. He is tall, but his brother is short. Now in this sentence find out the conjunction. Which is the conjunction? Very easy. बहुत आराम से आप देख सकते हो ना कि conjunction क्या है. Children, in this sentence this is the conjunction. But हमारा क्या है? Conjunction है, joining word है. He is tall, his brother is short. ये दो sentences थे हमारे. He is tall. Second sentence क्या है हमारा? His brother is short. ये दो सेंटेंस है. He is tall, his brother is short. और हमने क्या किया? उन दोनों सेंटेंस को कंबाइन किया. किस कंजंक्शन से? but से. ठीक है. और एक सेंटेंस बना दिया. He is tall, but his brother is short. वो तो लंबा है पर उसका भाई छोटा है. Got it? Next. Number 3. Do you like singing? Do you like singing or dancing? Do you like singing or dancing? Children, can you identify conjunction in this sentence? इस सेंटेंस में आपको कंजंक्शन दिख रहा है कहीं पर? Yes. कौन सा है कंजंक्शन? और क्या है? कंजंक्शन है. Do you like singing or dancing? यहाँ पे चॉइस है. We have to show choice. तो यहाँ पे दो चीजों में चॉइस है, सिंगिंग और डांसिंग. तुम्हें क्या पसंद है, सिंगिंग या डांसिंग? हमारा दो सेंटेंस क्या होंगे? डू यू लाइक सिंगिंग, डू यू लाइक डांसिंग. दो सेंटेंस कौन से हैं? डू यू लाइक सिंगिंग, डू यू लाइक डांसिंग. हमने इसको ज्वाइन किया कंजंक्शन और से. डू यू लाइक सिंगिंग और डांसिंग. गॉट इट? डू यू लाइक सिंगिंग और डांसिंग. क्योंकि यहाँ पे चॉइस है इसलिए हमने यूज किया कंजंक्शन और. नेक्स्ट करें. लेट्स स्टार्ट. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. ये आपने देख लिया. नंबर 4. Number 4 is Sheila and Sanya are siblings. Sheila and Sanya are siblings. शीला एंड सान्या आर सिबलिंग्स. अब इसमें कौन सा है कंजंक्शन? चिल्ड्रन, कंजंक्शन इज एंड. शीला एंड सान्या आर कंजंक्शन. सिमिलर चीजों को हमने ऐड किया है. हमारे दो सेंटेंस क्या हो रहे होंगे? शीला इज सान्याज सिबलिंग या सान्या इज शीलाज सिबलिंग. ये दो सेंटेंस है और इसको हमने ज्वाइन किया तो हमारा क्या बन गया? शीला एंड सान्या आर
सिबलिंग। यहाँ पर हमारा कंजंक्शन है एंड, जिसको जोड़ा हमने और दोनों सेंटेंस हमारे ज्वाइन हो गए। Children, now next sentence is, let me wrap this. यहाँ पर अभी थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? टी इज hot but ice cream is cold. Is cold. Tea is hot but ice cream is cold. In this sentence, which word is conjunction? Children, in this word, this is conjunction. This is the joining word. But is the conjunction. इसने कौन से दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है? Tea is hot, ice cream is cold. Two sentences are tea is hot, ice cream is cold. और इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है using the conjunction but. Tea is hot, but ice cream is cold. Okay? So, I hope ये आपको जो sentences हैं conjunction वाले, ये हमने underline जो किया, ये आपको समझ में आ गया कि conjunction कौन सा था sentence में and how they have joined the two sentences. किस तरह से sentences को join किया गया है. ठीक है? अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक्सरसाइज आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वी विल नॉट कंप्लीट इट टुडे, वी विल नॉट डू इट टुडे, आई विल एक्सप्लेन यू सिंपली एंड जब आपको समझ में आ जाएगा तब इसको हम करते हैं। Choose the correct conjunctions and fill in the blanks. Now, what the question says कि आपको options दिए गए हैं, दो conjunctions आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको correct वाला conjunction use करके blank को fill करना है। Now, children, here I would like to explain that जो भी हम conjunction choose करेंगे, जो भी हम conjunction चुनेंगे, वो depend करता है किस पर? कि हमारा पर्पस क्या है। सेंटेंस में हम दो सिमिलर आइडियाज को ज्वाइन कर रहे हैं या हम ऑपोजिट आइडियाज को ज्वाइन कर रहे हैं या हम कोई दो ऑप्शंस को ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमें कौन सा कंजंक्शन यूज करना है वो किस पे डिपेंड करता है कि अगर हम एंड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम दो सिमिलर आइडियाज या कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तब हम यूज कर रहे हैं। अगर हमने कंजंक्शन लिया बट, इसका मतलब है कि दो ऑपोजिट आइडियाज या कोई दो डिफरेंट चीजें हैं उसको हम बता रहे हैं तो हम बट यूज कर रहे हैं। और जब ऑप्शन है, कोई चॉइस है, तो हम और यूज करेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है while choosing the करेक्ट कंजंक्शन। जैसे आपको एग्जाम्पल में आपका मैं बता रही हूँ, यहाँ पर फर्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मोना हैज वन ब्रदर ब्लैंक वन सिस्टर। यहाँ पे सिमिलर चीज है, वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। मोना हैज वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एंड। हमारे पास ऑप्शन क्या है? एंड और बट। ऑप्शन हमारे पास है एंड और बट, पर हम यहाँ एंड क्यों चूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर मोना से रिलेटेड चीजें हैं और सिमिलर चीजें, भाई बहन की बात हो रही है। तो मोना के एक भाई है और एक बहन है। मोना हैज वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। हमने एंड यहाँ क्यों यूज किया? क्योंकि हम सिमिलर चीज, हम एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, कि उसका एक भाई है और एक बहन है और ये सिमिलर आइडिया है। ठीक है, मोना हैज वन ब्रदर एंड वन सिस्टर।
सिमिलरली जो दूसरा सेंटेंस है, ही वेंट टू द मार्केट ब्लैंक बॉट अ टॉय। वो मार्केट गया, बॉट अ टॉय। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शंस अगर हमारे पास एंड और बट है तो हम क्या यूज करेंगे? ये रिलेटेड, ये इसमें इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है। तो जब हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? एंड। ही वेंट टू द मार्केट एक सेंटेंस है, इसमें हमने इंफॉर्मेशन ऐड किया बॉट अ टॉय, तो हम लिखेंगे एंड। ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ टॉय। चिल्ड्रन, इसी तरह से हमें चूज करना है करेक्ट कंजंक्शन को। चिल्ड्रन, दिस एक्सरसाइज वी विल नॉट डू टुडे, वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।